So we are going to start the first lecture after this pandemic. So the lecture is about second and higher order differential equations. So you know that you already studied about the first order differential equation in chapter 1. You also modeled some first order differential equations, and you also studied some methods for solution of differential equation. That is separable of variable method, homogeneous method, exact differential equation, and integrating factor, linear equation, and then at the end you have studied the Bernoulli equations. So you already know about the first order differential equation and how to deal with the first order differential equation. Now today we are going to start the second and higher order differential equations, how to deal with the second and higher order differential equations. So before this, we have to study some basics of this topic, that how to solve a second order differential equation. So before that, I give some reminder that you have studied the linear and non-linear equation. If you remember, आपने लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, आपने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस भी पढ़े थे इन फर्स्ट चैप्टर. सो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने लगा हूं. अगर आपके पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy by dx, this is a differential equation, plus y, this is equal to 0. So now let's see that this differential equation is linear or non-linear. So for linear and non-linear, we have studied that if there exists the dependent variable y with its derivative, if the product of the dependent variable exists with its derivative, so such type of differential equation will be non-linear. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, तो उस टाइप के इक्वेशन को जिसमें ये वाला टर्म एग्जिस्ट करे तो वो नॉन लीनियर होगा. इसी तरह अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डबल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव मींस फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, सो वो भी नॉन लीनियर होगा. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, सो वो नॉन लीनियर होगा. दिस इज फर्स्ट थिंग you have to see in the differential equation. On behalf of this, you can say that this is linear or non-linear. So this is first thing. Second was, if you remember, if there exists the dependent variable and its power is other than 1, or if there exists the derivative and its exponent is other than 1, suppose this is of power 2, suppose. So if such term exists, then again the given differential equation will be non-linear. It means कि अगर y का power other than 1 हो या उसके derivative का power other than 1 हो, so again this differential equation will be non-linear. And third step हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई transcendental function exist करे, transcendental function means sine, transcendental function means cos, means all trigonometric functions. Transcendental function means log function, transcendental function means e function, exponential function. And अगर ये trigonometric function जो है या transcendental function जो है ये dependent variable पे apply हुआ हो, dependent variable पे मैं independent variable की बात नहीं कर रहा, मैं dependent variable की बात कर रहा हूँ. So अगर ऐसा term exist करे, so again ये differential equation non-linear होगा. सो अगर ये तीन चीजों में से कोई भी पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करे, कोई भी टर्म एग्जिस्ट करे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस टर्म की वजह से वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन तीनों पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे,
तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. सो लेट्स सी दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज लीनियर और नॉन लीनियर. सो is there exists the derivative, but the derivative exponent is 1. There exists the dependent variable, but its power is 1. There doesn't exist the product of y with dy by dx. So ये दोनों तो नहीं exist हो रहे 1 and 2, और उसमें से sin of y, tangent of y, cos of y, उस टाइप का भी टर्म कोई नहीं है. It means this is homogeneous. समझ आ रहे हैं जी? यस सर, समझ आ रहा है. ओके जी, ओके. सो एफ अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2x एग्जिस्ट करे, अगर यहाँ पे 2x एग्जिस्ट करे राइट हैंड साइड में, सपोज दिस इज नाउ 2x, सो अगेन दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, सॉरी, this is again linear because this in this term there is no y to see that its power is 1 or other than 1. इसमें y भी नहीं है, इसमें डेरिवेटिव भी नहीं है, इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन on y नहीं है. So this means that this term is linear. यहाँ पे y एग्जिस्ट हो रहे हैं लेकिन उसका पावर 1 है, यहाँ पे डेरिवेटिव है लेकिन उसका पावर 1 है अगेन. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. लेकिन अगर राइट हैंड साइड में इस 2x की जगह साइन ऑफ y आ जाए, अगर साइन ऑफ x आ जाए, अगेन दिस विल बी लीनियर. अगर साइन ऑफ x आ जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एनी फंक्शन डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई हो जाए, सो उसकी वजह से वो नॉन लीनियर नहीं होगा, वो लीनियर होगा. लेकिन अगर ये साइन ऑफ y बन जाए, देन दिस विल बी नॉन लीनियर ड्यू टू दिस साइन ऑफ y. अगेन अगर यहाँ पे कोई y एग्जिस्ट करे फिर भी ये नॉन लीनियर होगा. अगर यहाँ पे कोई y पावर 1/2 एग्जिस्ट करे, अगेन ये नॉन लीनियर होगा. अगर यहाँ पे कोई इसका एक्सपोनेंट अदर देन 1 एग्जिस्ट करे, so again this will be non-linear. So now this is non-linear due to this term, also this is non-linear due to this term, also this is non-linear due to this term and due to this term. जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे टर्म्स नॉन लीनियर हो. अगर एक टर्म भी उसमें से नॉन लीनियर हुआ, सो वो नॉन लीनियर कहलाएगा. सपोज दिस इज वन, सपोज नाउ दिस इज अगेन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक टर्म ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. क्लियर हुआ जी? यस सर. ओके जी, थैंक यू. यस सर. नाउ द सेकंड स्टेप इज, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है. पहले हमने लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ा, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस कब कहेंगे. सो अगेन अगर हमें जीरो को एस साइन वाई को खत्म करें, इसकी जगह जीरो यूज करें, सो अगेन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, this is suppose y. Now this is homogeneous or non-homogeneous. So अगर हर टर्म में या डिपेंडेंट वेरिएबल खुद एग्जिस्ट करे, डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y, या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. अगर हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल खुद एग्जिस्ट करे या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. और अगर ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करे, सपोज दिस इज 2x, जिसमें न डिपेंडेंट वेरिएबल हो न उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, सो उस टर्म की वजह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाएगा. समझ आ रहे हैं जी? यस सर. यस सर. ओके जी. यस सर. यस सर. जी ऑलरेडी ये हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा भी था. अब हम इस लेक्चर की तरफ आते हैं. इसके कंटेंट्स जो हैं लीनियर इक्वेशंस, तो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए. लीनियर इक्वेशंस कौन से हैं? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम ये पढ़ेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है. अगर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो हम उसके ऑर्डर को कैसे रिड्यूस करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में फिर उसको आप सॉल्व कर सकेंगे. सो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मींस हाउ टू रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड थर्ड स्टेप में हम ये पढ़ेंगे
कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व करें। अगर किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और उसके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम होमोजीनियस इक्वेशंस लेंगे और उसके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज this one is homogeneous equation, f2x is 0, f2x becomes 0, this become a homogeneous equation, but this is homogeneous equation with constant coefficients, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव का भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है और y का भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। तो अगर हर एक का होमोजीनियस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स एग्जिस्ट होते हैं अगर उसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। सो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट हुए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर उसी के साथ ये भी पढ़ेंगे कि अगर ये नॉन होमोजीनियस टर्म भी एग्जिस्ट करे तो फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस इज आवर टारगेट in this class. So अब हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम होता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मींस द प्रॉब्लम, अगर हम एक एग्जांपल ले ले, सपोज दिस इज y of 0 equal to 1, this is y dash of 0 equal to -1, suppose. So now these are two initial conditions at time t is equal to 0. Now if this x represent t, suppose अगर ये टाइम हो, हमने जनरली इसको x रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर ये टाइम हो, कभी ये टाइम होगा, कभी ये x होगा, कभी ये स्पेस वेरिएबल होगा, कभी ये कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। सो अगर ये टाइम हुआ, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम पे डिपेंड करे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस की जरूरत होगी। अगर वो सेकंड ऑर्डर है तो हमें दो इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो हमें एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने के दौरान हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल अपीयर होता है और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम दो दफा इंटीग्रेट करेंगे तब सॉल्यूशन निकलेगा। सो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें दो कांस्टेंट जो के इन्वॉल्व होंगे, उसको उन दोनों कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें दो इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन क्या होते हैं, इनिशियल कंडीशन कब हम लेते हैं। सो हम एक एग्जांपल अगर हम ले ले, सपोज ये एक यूरेनियम सब्सटेंस है जिसका मास जो है y है, दिस इज ए सब्सटेंस जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है। अगर हम इसका मास देख ले तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिकम्पोज होगा। इट मींस के टाइम के लिहाज से उसमें चेंज आ रहा है, चेंज जो है इसमें टाइम के लिहाज से आएगा। इट मींस कि अगर इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का डेवलप करेंगे तो उसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट मींस कि हो सकता है कि अगर इस प्रॉब्लम को हम मॉडल करें और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, हो सकते हैं थर्ड ऑर्डर मिल जाए, लेकिन इसका तो हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर मिला था। इसी तरह और डीके प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें सेकंड ऑर्डर भी बन सकता है, थर्ड ऑर्डर भी बन सकता है। सो अगर सेकंड ऑर्डर बना तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए दो इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो थर्ड ऑर्डर बना तो तीन इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। सपोज अगर हम इसको डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब करें, this is plus, so we need another boundary condition which will be on y double dash. So y double dash of 0, this is suppose equal to 2, suppose. So the negative sign in first derivative shows that the derivative decreases, that is the mass decreases
or temperature decreases or other physical property which decreases, so the derivative 0 means that the phenomena decreases. So actually if initial value problem means if a differential equation depends on time, so you need initial conditions, and this is called initial value problem. अगर हम एक और प्रॉब्लम ले ले, सपोज दिस वन, हम एक रॉड लेते हैं जिसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 10 मीटर। उसका एक एंड जो है T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे हम फिक्स करते हैं, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरा एंड जो है वो हम फिक्स करते हैं सपोज T इज इक्वल टू 20 डिग्री टेम्परेचर पे हम फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं? आप यूनिफॉर्म टेम्परेचर दोनों एंड्स को प्रोवाइड करें, सो इसके टेम्परेचर दोनों के फिक्स हो जाएंगे। इस एंड को सपोज आपने आइस में रखा, सो आइस में रखने के बाद इस एंड का टेम्परेचर मुसलसल कंटिन्यूसली 0 रहेगा, और इस एंड को आप एक ऐसी सोर्स के साथ अटैच करें जो कंटिन्यूसली 20 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हो। सो अब क्या होगा, इस 20 और इस 0 के दरमियान में से इस रॉड में एक्सपेंशन होगा और टेम्परेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे, सो इसको फाइंड करने के लिए यू नीड टू मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सपोज मेरे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना, सपोज डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस टी दिस इज इक्वल टू 0। सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। सो अब देखें ये टेम्परेचर जो है दिस डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम नाउ, it depends on length, it depends on x. Suppose the length is along x axis, अगर rod को आप along x axis लेंगे, so it means that temperature now varies along x axis. So अब temperature space के लिहाज से वेरी हो रहा है, length के लिहाज से वेरी हो रहा है, not with time. So अब length के दो boundaries होते हैं, one is 0 and that is 0 length से start करें, and another is 10 at 10 मीटर, दूसरा एंड उसका 10 मीटर पे है। सो 0 एंड पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0, एंड 10 एंड पे टेम्परेचर कितना है, दिस इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नाउ दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, दीज आर नॉट इनिशियल कंडीशन, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज दोनों बाउंड्रीज पे आपने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड की और उसकी मदद से फिर आप इनसाइड टेम्परेचर को इसको सॉल्व करके कांस्टेंट निकाल के फाइंड हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। अच्छा जी, सो यहां तक समझ आ गया? सर यस सर। ओके जी, ओके। ये बाउंड्री कंडीशन वाला एक बार अच्छा, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द लेंथ या अलोंग द विड्थ, अलोंग द हाइट या स्पेस में वेरिएशन उसकी हो, सो हम उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस लेंगे, इनिशियल कंडीशंस नहीं लेंगे। सपोज रॉड में टेम्परेचर वेरी हो रहे, सो रॉड के दो एंड्स पे हम टेम्परेचर की वैल्यूज ले लेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे, तब हम इनसाइड के टेम्परेचर्स को फाइंड कर सकेंगे। अगर उसको फिक्स नहीं रखेंगे, फिक्स टेम्परेचर्स पे नहीं रखेंगे, तो आप इनसाइड के वैल्यूज को भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उन दो कांस्टेंट को सिर्फ आप कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन मींस दो जगहों पे आपने टेम्परेचर की वैल्यूज को फिक्स करनी होती हैं, तो आप एंड पे टेम्परेचर को फिक्स कर सकते हैं, आप इनसाइड टेम्परेचर फिक्स नहीं कर सकते। सो एंड पे टेम्परेचर फिक्स करें, अपनी मर्जी के टेम्परेचर फिक्स करें, उसके रिलेटेड आप इनसाइड वेरिएशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको मिल जाएगा। और अगर वेरिएशन सिर्फ टाइम के लिहाज से हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर वेरिएशन, अगर आप इस देखिए, अब आप इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 करें और इस 20 को 30 करें, तो आप देखेंगे कि इनसाइड वेरिएशन कुछ और होगी। अगर इस 0 को आप 5 करें और इस 20 को 25 करें, तो वेरिएशन कुछ और होगी। इट मीन्स कि आप जैसे जैसे बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं, आपके इनसाइड रॉड जो टेम्परेचर वेरिएशन है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिफरेंट होता जाएगा। सो इट मीन्स के
आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है, इट डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री कंडीशन। इसी तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपका वेरिएशन जो होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल कंडीशन। ये क्लियर हुआ? सर ये जो इक्वेशन लेके है सर जी, ये थोड़ा समझाए कि ये सेकंड डेरिवेटिव सर जो आपने लिए है सर और आगे टी लिए है सर, ये किस तरह ये यहाँ मैंने डायरेक्टली लिया है, ये मैंने डायरेक्टली लिया है, एक्चुअली ये नहीं है। थैंक यू। ओके, मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो फिर इसके, चूंकि ये सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके लिए मुझे दो कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो दो एंड्स पे उसके टेम्परेचर की वैल्यूज फिक्स करके ले ले, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मींस कि अगर आपके पास कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस dny dx n5 भी हो सकता है, n10 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है। अगर ये nth ऑर्डर है तो आपको n इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। सपोज अगर ये सेकंड ऑर्डर हुआ तो 2 की जरूरत पड़ेगी, अगर ये 3 हुए तो 3 की जरूरत पड़ेगी, और इन द सेम वे। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक कब होगा। सो मैं आगे थोड़ा सा इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, और हो सकता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो, तो उसका तरीका थोड़ा सा आप सीख लें कि यूनिक सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। अगर आप मास डिके हो रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, dy by dt is equal to ky। मास डिके के लिए हमने डेवलप किया था dy by dt is directly proportional to y, it means which is equal to ky, k is proportionality constant। so ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक तो लाजमी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो एक मास डिके प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्यूशन मींस कि अगर 2 सेकंड बाद आप उसका मास देख ले तो मास के 2 वैल्यूज नहीं हो सकते, किसी भी टाइम पे मास की वैल्यूज 2 नहीं हो सकते। इट मींस कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। सो तरीका ये है कि कैसे आप देखेंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास एक से ज्यादा होंगे। दिस इज सपोज 2, दिस इज 2x, दिस इज प्लस y, and this is equal to 2x square। सपोज ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने चेक करना है कि आइदर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूनिक और नॉट। तो आपने 2 चीजें देखनी है। क्या देखना है, एक आप सारे कोएफिशिएंट कलेक्ट करें। पहला जो कोएफिशिएंट जो थर्ड ऑर्डर के साथ हैं उसको हम a3x लिखते हैं, a3x मींस x इन दिस केस। फिर हम सेकंड ऑर्डर वाला कोएफिशिएंट लिख लेंगे which is in this case a2x, a2x is equal to 1, a2x is equal to 2 in this case। and what is a1x? a1x means the coefficient with dy by dx, this is actually 2x, and this is 2x। what is a0x? a0x is the coefficient with what? a0x is the coefficient with y, so in this case this is 1। so what is g of x? g of x means the right hand side term, that means that in this case this is 2x square, this is 2x square। so now let's see the coefficients। all the coefficients and the function gx must be continuous। अगर ये कंटिन्यूज हुए सारे, अगर ये सारे कंटिन्यूज हुए, ये कंटिन्यूज हैं। क्यों कंटिन्यूज हैं? क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स हैं। दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, this is constant polynomial, this is quadratic polynomial, and every polynomial is continuous। so ये functions continuous होंगे। अगर ये polynomials हैं तो ये continuous होंगे। तो पहले आपने ये चेक करना है कि ये सारे continuous है या नहीं है। जहन में चेक करना है, आपने definition नहीं अप्लाई करना, डायरेक्टली चेक करना है। अब फिर देख ले कि आपका जो हायर ऑर्डर कोएफिशिएंट है, अब इस केस में वो x है, वो कभी 0 तो इक्वल नहीं है। अगर वो 0 ना हो तो ये दूसरा कंडीशन बन जाएगा। तो
तो आपने दो चीज़ें देखनी हैं कि ये कोएफिशिएंट्स कंटिन्यूस भी हो और हायर ऑर्डर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो भी हो। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर यूनिक होगा। जी समझ आया? सर प्लीज इसको थोड़ा रिपीट कर दें इसी बात को। अच्छा सर ये कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करें। अच्छा जी अच्छा। दिस इज होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सबके कोएफिशिएंट्स ले लें, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्स है, ये चूंकि थर्ड ऑर्डर के साथ है मैं इसको 3x के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को मैंने 2x का नाम दिया और डी वाई बाई डी एक्स को 1x दिया, y के कोएफिशिएंट को मैंने 0x दिया और जिसके साथ y ना हो और डेरिवेटिव भी ना हो उसको gx कह दे। अब ये सारे फंक्शन जो हैं a3 a2 a1 a0 g ये सारे कंटिन्यूज होने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए ये सारे कंटिन्यूज होने चाहिए। तो चूंकि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, कुछ इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल हैं, कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, तो सारे पॉलिनोमियल्स लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट हो, वो चूंकि कंटिन्यूज होते हैं तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल सारे कंटिन्यूज हैं, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूज हैं। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि हायर ऑर्डर कोएफिशिएंट जो है इस केस में वो x हैं तो वो कंटिन्यू सॉरी वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस केस में वो x हैं वो जीरो नहीं है। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। क्लियर हुआ? जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी हम ये किस तरह फाइंड कर लेंगे कि ये हायर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है ये जीरो नहीं है? हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो नहीं होता, ये नोट करें। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ मौजूद है तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये आपके पास ये एक थ्योरम है, ये कह रहे हैं कि अगर an ये उसी इक्वेशन के साथ जो इक्वेशन 1 गिवन है an x d उसके रिलेटेड हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ये सारे कोएफिशिएंट कंटिन्यूस भी हुए और an x जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हैं वो जीरो भी ना हुआ तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो ये रिटन फॉर्म में भी मैंने बता दिया। नाउ दिस इज एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 इज देखिए 3y डबल डैश प्लस 5y डैश डबल डैश प्लस y डैश प्लस 7y इक्वल टू 0। अब इसके साथ तीन इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तीन कंडीशंस गिवन है, वन इज ऑन y, वन इज ऑन y डैश एंड थर्ड इज ऑन y डबल डैश। सो इस क्वेश्चन सिर्फ ये है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको सॉल्व कर सकें। फिलहाल आपने ये सीखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो सिर्फ ये आपने पढ़ना है। तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेट्स चेक दैट। gx ऑलरेडी 0 है, एक कोएफिशिएंट इसमें 7 है, एक 1 है, एक 5 है, एक 3 है। सो सारे कोएफिशिएंट चूंकि कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूज होते हैं, तो इट मींस सारे कोएफिशिएंट कंटिन्यूज भी हैं। और y डबल डैश के साथ चूंकि 3 है, 3 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इट मींस हायर कोएफिशिएंट 0 भी नहीं है और सारे कोएफिशिएंट कंटिन्यूज भी है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई बात? Yes, sir. ओके जी। नाउ दिस इज सेकंड एग्जांपल, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 12x। इसमें एक कोएफिशिएंट जो हायर ऑर्डर के साथ 1 है वो कंटिन्यूज भी है और वो 0 भी नहीं है। फिर नेक्स्ट y के साथ कोएफिशिएंट जो है वो -4 है, वो कंटिन्यूज है। 12x जो है gx है वो कंटिन्यूज है और चूंकि पॉलिनोमियल है जो कंटिन्यूज होगा। तो ये कह रहे हैं कि ऑल कोएफिशिएंट्स आर इन gx, ऑल कोएफिशिएंट इन gx आर कंटिन्यूअस and a2x is not 0, so this differential equation will be a unique solution. सॉल्व आपने नहीं करना, सिर्फ आपने चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। और आपने अगर ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है y ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसको 2 दफा डिफरेंशिएट करें और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें। अगर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, इट मींस दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
और ये यूनिक भी होगा क्योंकि क्राइटेरिया ये बता रहे हैं कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। समझ आ रहे हैं जी? यस सर, समझ आ रहा है। ओके जी, थैंक यू। नाउ दिस इज अनदर, दिस इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपके पास कोई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, तो उसको इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो बाउंड्रीज की जरूरत होगी, एक ए पे एक बी पे। ए इज वन एंड, बी इज अनदर एंड। सो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सॉल्यूशन जब आएगा तो हम प्लॉट भी कर सकेंगे। नाउ दिस वन एग्जांपल 3, दिस इज x डबल डैश प्लस 16x इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो x डबल डैश है प्लस 16x इज इक्वल टू 0 है, अगर x इज इक्वल टू c1 cos 4t प्लस c2 sin 4t, अगर ये इसका सॉल्यूशन हो तो फिर c1 c2 को आप कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन ये नहीं है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन ये है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये x हो तो इस x में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मुझे दो कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। एक गिवन है x0 इज इक्वल टू 0, दूसरा गिवन है x पाई इज इक्वल टू 0। सो पहले t की जगह 0 पुट करें। सो जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा। जब cos 0 होगा तो c1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, और जब t की जगह या साइन के साथ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, सो दिस विल बिकम 0, लेकिन cos के साथ सॉरी 1 आ जाएगा। सो c1 इज इक्वल टू 0, सो c1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। इसी तरह अगर आप x t की जगह पाई बाई 2 पुट करें, t की जगह पाई बाई 2 पुट करें तो 4 पाई बाई 2 मींस पाई बाई 2, सो cos पाई बाई 2 इज 0, c1 0 बन जाएगा, sin पाई बाई 2 इज 1, सो c2, सो x ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, सो x की जगह 0 पुट करें, you will get 0, so c2 is also 0। so अगर c1 और c2 दोनों आप पुट करें इस सॉल्यूशन में, so x will become 0, so this is the solution। अगेन अगर हम इस पाई बाई 2 की जगह कंडीशन ले ले पाई बाई 8, सो आपका ये c1 c2 कुछ और आएंगे, और इसी तरह अगर आप कोई और ले ले तो कोई और आ जाएंगे। सो ये कह रहे हैं कि आप c1 c2 को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये प्रोसीजर है। समझ आ गया जी? यस सर। ओके यस सर, समझ आ गया। ओके जी। अब ये सॉल्यूशन प्लॉट कर रहा है, सॉल्यूशन प्लॉट कर रहे हैं, 4 सॉल्यूशन उन्होंने प्लॉट किए हैं। ये देखिए अगर आपके पास कोई रॉड है, सपोज दिस इज रॉड, सो उसके दोनों एंड्स पे जो टेम्परेचर है उसको जब आप वेरी करेंगे, सो उसके इनसाइड जो बिहेवियर होगा, ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये वाला ये उसके इनसाइड वैल्यूज को शो कर रहा है, ये इनसाइड वैल्यूज को। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप बाउंड्रीज को चेंज करेंगे सो इनसाइड वेरिएशन भी चेंज होती जाएगी, और अगर आप उस सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे तो बाउंड्रीज के चेंज करने से उसके सॉल्यूशन का ग्राफ भी डिफरेंट बनता जाएगा। समझ आ रहा है जी? यस सर, समझ आ रहा है। जी जी, ओके जी, थैंक यू। सो now this is a differential equation. If the right hand side is 0, this is called homogeneous. If right hand side is non-zero, this is called non-homogeneous. So ये already मैं explain कर चुका हूँ। Now let's start an operator. Let's start an operator. Suppose आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, this is equal to 0, this is 2, this is what, this is 2, this is suppose this one, this is a homogeneous differential equation with constant coefficients. So ये homogeneous differential equation है। अगर हम इसको ऐसे लेके d cube by dx cube plus 2d square by dx square plus 2d by dx
and plus 1, so this will be equal to 0 अगर और साथ में y भी होगा यहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम d by dx को इक्वल टू d ले ले, d by dx मीन्स ऑपरेटर, उसको डिनोट करे d से, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डिनोट करे d स्क्वायर से, और इसी तरह d by dx को रिप्रेजेंट करे d क्यूब से, दिस इज d स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन होगा ये बन जाएगा d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 into y, this is equal to 0, this one हम अगर इसको ly लिख ले, this is equal to 0, so L means the combination of these operators, L means the combination of these operator। so हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ये L डिफरेंट होता जाएगा, और ये लीनियर ऑपरेटर में किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, if its coefficients are constant। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट कांस्टेंट हैं तो सिंपली आप इसको ly में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। L मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, वो हर एक के लिए अलग डिफाइन होगा, कभी ये d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 होगा, कभी ये कुछ और होगा, इट विल डिपेंड ऑन योर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर ये इक्वल टू 0 हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा, और अगर ly डज नॉट इक्वल टू 0 हो सो ये होगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पे 2x आ जाए, दिस विल बिकम इस साइड को आप ly में कन्वर्ट तब कर सकते हैं व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन is the coefficient are constants। so समझ आ रहे हैं जी? Yes sir। Yes, sir. ओके जी। so ये कह रहे हैं कि if L of y is equal to 0 where L is the linear operator and L of y is equal to g of x, then it will be non-homogeneous. If it is 0, this will be homogeneous, where L is what? L is the linear operator, and L is what? dn minus 1 d n r. This is the combination of operators, so this one। now यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम बेसिक स्टार्ट हो रहे हैं, सो इसको आपने अब गौर से सुनना है, क्योंकि आगे चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज़ आप मुझे बता दे, आपने लीनियर अलजेब्रा तो पढ़ा है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, Yes, पढ़ा sir। है। Yes, sir. अच्छा जी, अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो फिर आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का भी पता होगा, Yes, sir. और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन का भी पता होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो लेट Yes, sir। मैं उसको एक साइड पे कर रहा हूँ। चले, अगर आपसे कहा जाए कि v1 ये एक वेक्टर है, v2 दूसरा वेक्टर है, v3 आपका तीसरा वेक्टर है, v3 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, so this is called linear combination of v1 v2 v3। this v is called the linear combination of v1 v2 v3। so वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं, रिजल्ट में आपके पास एक और वेक्टर मिलता है, so this vector v is called the linear combination of v1 v2 v3। अब ये वेक्टर्स जो तीन वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, तो उसको जब आप चेक करते थे तो आप इसके साथ c1 मल्टीप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो, इसके साथ c2 मल्टीप्लाई करते थे v2 के साथ, और v3 के साथ आप c3 मल्टीप्लाई करते थे और इक्वल टू 0 लेते थे, इक्वल टू 0 लेते थे, अगर आपको याद हो। सो अगर इसके रिजल्ट से आपको मिल जाए कि c1 is 0, c1 is 0,
C2 is 0 and C3 is also 0. So फिर क्या होगा? ये तीनों वेक्टर लीनियरली linearly independent. यस, अगर इसमें से एटलीस्ट एक भी स्केलर नॉन जीरो आया तो ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी, ये आपको क्लियर है। अब देखें, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, विच इज इक्वल टू 0। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम y1 इज इक्वल टू 1 ले ले और y2 इज इक्वल टू x ले ले, तो अगर y1 को 2 दफा डिफरेंशिएट करें तो 0 मिलेगा और y2 को 2 दफा डिफरेंशिएट करें तो 0 मिलेगा। इट मींस कि अगर s1 को हम sy की जगह रिप्लेस करें या sx को हम sy की जगह रिप्लेस करें तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मींस कि ये y1 और y2 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। समझ आ रहे हैं जी? यस सर। ओके, Yes sir, समझ आ रहा है। अगर y1 इज इक्वल टू 1 आप रिप्लेस करें y की जगह इस इक्वेशन 1 में तो ये 0 दे देगा क्योंकि 1 का डबल डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह y2 की वैल्यू x है, अगर x को आप y की जगह रिप्लेस करें और उसके डबल डेरिवेटिव ले ले तो अगेन 0 बन जाएगा। इट मींस कि ये फंक्शन 1 जो है और ये फंक्शन x जो है जिसको मैंने y1 y2 का नाम दिया है, ये दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों इसके सॉल्यूशंस होंगे। यस सर। अच्छा जी, अब देखिए। यस सर। अच्छा, अब मैं इन दोनों फंक्शंस के जिस तरह हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैं एक को C1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को और C2 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना किन चीज़ों का? यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, चले 1 लिख ले। मैंने इन दोनों फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, क्या होगा? दिस विल गिव यू C2 एंड सेकंड डेरिवेटिव ले ले तो क्या होगा? सॉरी, y डबल डैश 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिल्कुल दिस इज 0। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर, सॉल्यूशन। ओके जी, यस सर। अगर ये भी Yes sir, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है जी, अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट मींस दिस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन जी। अब थोड़ा सा आप जहन पे जोर दे और आप कहें, आपको मुझसे क्वेश्चन करना चाहिए कि हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हम इसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर 1 टाइम इंटीग्रेट करें तो मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1 मिल जाएगा, और अगर दूसरी टाइम में कर लूँ इसको तो y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 मिल जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया, 2 सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन मैंने बनाया और जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से मुझे मिला, ये दोनों तो सेम है। ओके, यस सर। अगर ये दोनों सेम हैं तो मैं क्यों 2 सॉल्यूशंस को कंबाइन करके सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूं? अगर डायरेक्टली पॉसिबल हैं तो मुझे 2 सॉल्यूशंस की पर क्यों जरूरत है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन चूंकि सिंपल था, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता था 2 टाइम्स, तो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली मुझे मिला। लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे 2 ऐसे फंक्शंस ढूंढने पड़ेंगे
जिसको मैं उस इक्वेशन में पुट करूं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हुआ सर। जी अच्छा, देखिए अब देखिए, अगर आपका एक फंक्शन 1 हो और एक 2 हो, तो ये दोनों अगर इसको आप y1 दे दे और इसको आप y2 दे दे, तो ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहा है ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। यस सर, Yes, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर 1 4 करे फिर भी करेगा। यस सर। अच्छा, अगर 2x करे एक और एक 4x करे या x करे या ये दोनों करे, तो ये दोनों भी करेंगे। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दोनों का भी लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये दोनों फंक्शन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये स्टेप दोबारा रिपीट करें सर। अच्छा, अगर दो फंक्शंस आपको ऐसे मिले जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर वो दोनों फंक्शन आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट न हुए, तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये दोनों फंक्शन आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए, तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन पर सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। Yes, sir. सर Y1 is equal to 1 अब और Y2 is equal क्वेश्चन ये है कि 1 और x क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और 1 और 2 क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या 2x और x क्यों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। यस सर। अच्छा जी, अगर मैं c1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूं और प्लस c2 के साथ मैं x मल्टीप्लाई करूं, इक्वल टू 0 ले लूं, लीनियर कॉम्बिनेशन उसका 0 ले लूं। लेट्स सॉल्व दिस कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 1, सो यू विल गेट c2 इक्वल टू 0। लेट कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, सो अगेन xc1 विल इक्वल टू 0। सो यहां से तो मुझे मिला कि 1 एंड x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, यस सर, समझ आया। अच्छा, अगर यहाँ पे हम 1 करें और यहाँ पे हम 4 करें, अब देखें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 हम कर सकते हैं ना। यस सर। अच्छा जी, अगर हम x पावर 0 के कोएफिशिएंट कंपेयर करें, तो c1 प्लस 4c2 विल बी इक्वल टू 0. So if c2 is 1, suppose, so c1 is minus 4. If c2 is 0, if c2 is 3, so it will become c1 will become minus 12. So there are infinite values of c1 and c2. There is a set of c1 and c2. So it means that c1 c2 are not unique solution. Solution भी यूनिक होना चाहिए और वो यूनिक सॉल्यूशन में वैल्यूज भी 0 होनी चाहिए। तो इस केस में वो सिचुएशन नहीं बन रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। यस सर, समझ आया सर। जी, अब देखें, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास y1, y2, yk कोई भी 10 सॉल्यूशंस हैं, कोई भी 5 सॉल्यूशन हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 5th ऑर्डर का है तो फिर 5 सॉल्यूशंस आप ढूंढेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर का है तो 3 ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। तो उन तीनों का या उन 5 का या जितने भी ऑर्डर हैं उतने सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो y बनता है वो उसका सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। यस सर। ओके जी, अब देखिए, ये एक कॉरोलरी है जो उस थ्योरम का रिजल्ट है। अगर आपके पास, मैंने जिस तरह बोर्ड पे लिखा था कि अगर 1 सॉल्यूशन है तो 1 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करे
तो 2 भी उसका सॉल्यूशन होगा। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करे वो भी सॉल्यूशन होगा। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करे वो भी सॉल्यूशन होगा। तो इट मीन्स के अगर y1 सॉल्यूशन है तो उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे स्केलर नंबर, सो वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। समझ आ रहे हैं जी? यस Yes, सर, sir. Yes, समझ आ sir. रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 4। ये कह रहे हैं कि अगर y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हुए। अगर ये इसके सॉल्यूशंस हैं तो फिर उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा? ये उसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, इन दोनों को एडिशन फॉर्म में लेके और c1 c2 साथ में मल्टीप्लाई करे। मैं इसके साथ c1 लिख रहा हूँ, इसके साथ चले a लिख ले, इसके साथ b लिख ले। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ना? Yes, sir. General. ओके, नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, 10 है, 15 है, 2 है, उनके साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई करे और ऐड करके 0 के इक्वल ले ले। अगर सारे स्केलर्स आपको रिजल्ट्स में 0 मिल गए सो आप कहें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर स्केलर्स में से एक भी नॉन जीरो मिला तो आप कहें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है जी? दोबारा समझाइए सर। मतलब ये है कि आपके पास फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को आपने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उसके साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 ले ले, उसको सॉल्व करे। अगर ये सारे स्केलर 0 मिल गए तो ये फंक्शंस f1 f2 f3 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इस स्केलर में से एक भी नॉन जीरो आया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। थैंक यू सर। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए एक और भी तरीका है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ। एक और भी सिंपल तरीका है, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। मैं एक और सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। w इज इक्वल टू, मैं इन दोनों फंक्शंस को, ये जो 1 और x है, इन दोनों को मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसको रो फॉर्म में लिख ले, 1 and x, 1 and ये सर वो डिटर्मिनेंट। जी, रॉन्स्कियन इसको कहते हैं। फिर नीचे उसके डेरिवेटिव्स लिख ले, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। सो इससे जो वैल्यू आ जाए वो लिख ले। अगर ये 0 ना हो तो हम कहेंगे कि ये दो फंक्शंस आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सपोज मैं 3 फंक्शंस ले रहा हूँ, 1x, x स्क्वायर, ये तीनों चेक करने हैं क्या ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो एक तरीका ये है कि इसके साथ c1 c2 c3 मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 0 ले ले। अगर c1 c2 c3 सारे जीरोस आ जाए तो फिर आप कहें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर एक भी नॉन जीरो आया तो आप कहें ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ अगेन, मैं उन फर्स्ट रो में उन्हीं फंक्शंस को लिख लूंगा, सेकंड रो में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लूंगा, थर्ड स्टेप में फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लिख लूंगा। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 2, उसको फिर एक्सपेंड कर लूंगा। अगर नॉन जीरो आया तो हम कहेंगे कि ये 3 फंक्शन जो पहले रो में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ जी? Yes, sir. ओके जी, ओके Sir. थैंक यू। नाउ सर क्वेश्चन है सर। जी सर आपने पहले 1 और x में आपने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, मतलब जब डिटरमिनेंट फॉर्म में आपने लिखा, लेकिन जब आपने 3 लिए तो उनका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड किया। तो इसकी वजह स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर 3 है तो नीचे 2 डेरिवेटिव्स लेंगे, अगर 4 हैं तो नीचे 3 डेरिवेटिव्स लेंगे, अगर 2 हैं तो 1 डेरिवेटिव लेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज, ये ग्राफ है f1 इज इक्वल टू एक्स का, इसकी जरूरत भी नहीं थी इस स्लाइड पे, f2 इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट का। नाउ ये 4 फंक्शंस हैं, f1 f2 f3 f4, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आप इसके साथ c1 c2 c3 c4 मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0 ले ले, या आप ऐसे करें कि डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यूज लेके, पहले cos स्क्वायर x लेके, पहले रो में sin स्क्वायर x लेके, secant स्क्वायर x लेके, टेंजेंट x स्क्वायर x लेके,
फिर उसके डेरिवेटिव्स नीचे लिख ले, उसको ओपन करे, अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए लीनियर। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यूज नॉन जीरो आ रही हैं, दैट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह ये एग्जांपल भी है। नाउ रॉन्स्कियन इसको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं आगे कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस हैं, उसको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो रॉन्स्कियन फाइंड करे। अगर वो रॉन्स्कियन डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और रॉन्स्कियन जो है वो फाइंड ऐसे करेंगे, ये है F1 F2 F3, F1 डैश F2 डैश F3 डैश। अगर फंक्शन n है तो डेरिवेटिव n-1 तक जाएंगे। अगर फंक्शन 3 है तो डेरिवेटिव 3-1 तक जाएंगे, मीन्स 2 तक जाएंगे। सो ये सिंपल है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। ठीक, अगेन आपके पास ये कह रहे हैं कि अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप, अगर वो उसका ऑर्डर 2 है तो दो सॉल्यूशंस फाइंड करे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन होगा। अगर 3 ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो 3 फंक्शंस फाइंड करे, उन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करके वो उसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर आपके पास वो k n ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, तो n फंक्शंस ऐसे होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, और n फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ जी? यस सर। Now this is example 7. This is one function y1 is equal to e power 3x. This is second function. ये कह रहे हैं कि ये दो फंक्शन जो हैं, इन दोनों फंक्शन से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख ले। ये दोनों फंक्शन इसके सॉल्यूशंस हैं। आप इंडिपेंडेंटली इसको चेक कर सकते हैं। y1 के फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले ले और y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू 0 में पुट करे, यू विल गेट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। सिमिलरली y2 का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव पुट करे, फाइंड करे और इसको लेफ्ट साइड में पुट करे, यू विल गेट 0। सो इट मींस कि y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं। अब इन दोनों से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसके लिए जरूरी ये है कि आप रॉन्स्कियन फाइंड करें। अगर वो नॉन जीरो हो तो फिर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर ये जीरो आ जाता है, रॉन्स्कियन जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नहीं नहीं तो नहीं, अगर ये जीरो आता है तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा, फिर आप प्रीवियस मेथड से करेंगे। अगर ये नॉन जीरो आ जाए, सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि नॉन जीरो अगर आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट के बारे में ये नहीं कह रहा। ओके सर। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है। ये फंक्शन y है, ये कह रहे हैं कि इसको पुट करें प्रीवियस एग्जांपल में और शो करें कि ये उसका सॉल्यूशन है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, सेकंड डेरिवेटिव ले ले, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल आ जाए तो फिर उसका ये सॉल्यूशन होगा। ये सिंपल है। अगेन ये 3 फंक्शंस हैं, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ये तीनों फंक्शन से हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हो सकता है कि ये इसमें से दो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो। सो उसको चेक करने के लिए हम रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं और वो नॉन जीरो है, तो इसलिए इन तीनों फंक्शन से जनरल सॉल्यूशन बन सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन उन्होंने बना दिया। नाउ सर जी, C1 C2 C3 की वैल्यू हम रॉन्स के मेथड से मालूम कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। ये तो एक्चुअली डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट से आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। सर डिपेंडेंसी चेक करने के लिए पहले रॉन्स्कियन ट्राई करना चाहिए, उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन C1 C2 अगर सपोज करके 0 के बराबर लेना चाहिए अगर वो नॉन जीरो आता है। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर पहले मेथड से सिंपल है तो उससे करें। अगर 2 फंक्शंस हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो डिटरमिनेंट ही ठीक है। अगर 3 है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 3 से बढ़ गए तो डिटरमिनेंट बढ़ जाएगा, तो फिर आप पहला वाला मेथड यूज करें। यस सर। ओके जी, अब थोड़ा सा आप देखें
अगेन मैं वही डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, लेकिन उसको अब मैं, ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? अनहोमोजीनियस। नॉन होमोजेनियस। Yes. So let's integrate at once. So you will get dy by dx. This is equal to 2x plus c1. Again integrating, you will get y. This is equal to x square plus c1x plus c2. Now this part, which involve the arbitrary constant, is called the complementary solution. YC से denote करते हैं. And this part which doesn't involve the arbitrary constant is called particular solution, जिसको हम YP से denote करते हैं. So Y is actually equal to YC plus YP. This is general solution for non-homogeneous equation. अब देखिए, this is total solution of non-homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation में ये x square वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इस non-homogeneous टर्म की वजह से आ रहे हैं. If it becomes 0, there will be no 2x, there will be no x square. So homogeneous differential equation का जो solution होगा, उसके हर टर्म में constant involve होगा, लेकिन नॉन होमोजीनियस टर्म के डिफरेंशियल के सॉल्यूशन में एक टर्म एटलीस्ट एक ऐसा होगा जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस पार्ट में कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं. इन दोनों का एडिशन जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनता है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस एक्ट करे, तो उस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन की वजह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस बनेगा. ठीक है जी? यस सर. सपोज अगर हम वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो जो बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके अंदर जो टेम्परेचर मॉडल आप करेंगे, उसके वाटर के अंदर जो वेरिएशन आएगी टेम्परेचर की, उसको अगर आप मॉडल करेंगे तो ये बाहर वाला जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से वो मॉडल होगा नॉन होमोजीनियस में. अच्छा जी, अब जो बाहर से आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, सो आपस में कोलिजन्स होगी, कोलिजन की वजह से इंटरनल टेम्परेचर जनरेट होगा. सो एक इंटरनल टेम्परेचर जनरेट होगा, एक आप एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहे हैं. इन दोनों का एडिशन टोटल टेम्परेचर में चेंज लेके आएगा इनसाइड द लिक्विड. सो outside temperature plus inside temperature will be responsible for the total change in the liquid temperature. So this YC, that is C1x plus C2x, actually represent the change in temperature of liquid due to internal changes, and this x square represent the change in y. Y means suppose temperature, so this x square represent the change in temperature due to external source. समझ आ रहे हैं जी? यस सर. ओके, यस सर, समझ आ रहा है. अच्छा जी, अब YC जो है, YC एक्चुअली रिप्रेजेंट the change. Yes, sir. The change due to internal resistance, due to internal creation of temperature, due to internal disturbance, and YP represent due to external. So both, if you add both these two, so the total change will be recovered, will be count, will be calculated. So remember that if you are solving the non-homogeneous differential equation, so the solution will contain two parts. One is YC, one is YP.
So again, let's see an example. This is d square y by dx square. This is suppose equal to 0. If we integrate it twice, so we will get, first if we integrate it once, so we will get y dy by dx. This is equal to c1, and if we integrate it again, we will get y is equal to c1x plus c2. So what is this? This is actually yc. If you see, this is yc, this one. So this is actually homogeneous part solution. This is homogeneous part solution. And again, if you take the non-homogeneous equation, this is 2 suppose. So integrate it once, you get dy by dx. Without taking constant of integral, integrate it. Without taking constant of integral, so you will get y is equal to x square. हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लेके डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेट किया, इसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब आप होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल उसमें रिकवर्ड हो जाएंगे। आप इसको जब yc और yp ऐड करेंगे, so this will give you the non-homogeneous differential equation solution in this form. यस सर। ओके जी। सो कभी कभी ये पॉसिबल होता है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस तरह पहले हमने ये वाला किया, तो हम इसको पहले होमोजीनियस बना के क्यों सॉल्व करते हैं और फिर विदाउट कांस्टेंट इंटीग्रेट करके क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो C1 C2 जब आप लिखते हैं तो उसकी वजह से वो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट मुश्किल बन जाती है। इस वजह से हम पहले होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, फिर नॉन होमोजीनियस को डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी yc में रिकवर हो चुके होंगे। सो द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास कोई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हमेशा y इज इक्वल टू k किसके इक्वल होगा? yc प्लस yp, वेयर yc इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, homogeneous part solution, yp is particular solution, which is the solution of contribution due to non-homogeneous term. अच्छा, ये एग्जांपल 10 और ये 11 जो हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे जब आप आगे जाएंगे। सो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पे हम चलते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पे आपके जी अच्छा जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। एवरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, y डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सेकंड ऑर्डर लिख ले तो हर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0. This is second order homogeneous differential equation. So every second order homogeneous differential can be written in the form of equation 1. Equation 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। Every second order differential equation can be written in the form of equation 1. So अगर क्वेश्चन ये है कि अगर इसका वन सॉल्यूशन नॉन हो, वन सॉल्यूशन अगर नॉन हो तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? y2 हम कैसे फाइंड करेंगे? कभी कभी ये होता है, सपोज आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश इक्वल टू 2, तो बाय गेस मेथड कैन यू फाइंड इट्स फर्स्ट सॉल्यूशन और नॉट?
मैं फाइंड कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक सॉल्यूशन इसका एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x बन जाएगा और इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 बन जाएगा। सो इट मींस कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इट्स फर्स्ट सॉल्यूशन। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। अब फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर दूसरा सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते और एक सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, तो उस एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, हम एक इस प्रॉब्लम को आज डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू फाइंड second solution if one solution is known, or if you can find one solution by guess method। अगर आपको एक सॉल्यूशन नोन है तो उससे दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज आवर टारगेट। सो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है, उसका अगर एक सॉल्यूशन नोन है तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आप हमेशा नोट करें, आप हमेशा जहन में रख ले, जब भी आप किसी अननोन को फाइंड करते हैं तो आप क्वेश्चन में देखते हैं कि नोन चीजें क्या हैं, उन नोन चीजों को बेस बना के आप अननोन को फाइंड करते हैं। नोन चीजों को बेस बना के, नोन चीजों के साथ डील करके आप अननोन को फाइंड करते हैं। तो अगर एक सॉल्यूशन नोन है, उसके बेस पे हमने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि हमेशा मैंने ये कहा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा। अगर एक सॉल्यूशन y1 है, दूसरा y2 है जो कि अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर मालूम हो जाए तो वो एक फंक्शन होगा। अगर y1 भी एक फंक्शन है, y2 भी एक फंक्शन है, तो उन दोनों का डिवीजन भी एक फंक्शन होगा, जिसको मैं u से डिनोट कर रहा हूँ। सो आपको अगर y2 हम ऐसे लिख ले, y2 इज इक्वल टू uy1, तो गलत नहीं होगा। अगर इस u को हम फाइंड कर सके, तो y1 के साथ मल्टीप्लाई होके दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ आगे काम ये है कि इस u के लिए कोई फार्मूला डेवलप हो जाए ताकि इस u को हम फाइंड कर सके। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप यहाँ पे। सर ये जो आपने अभी किया है ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा जी, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, इसका एक सॉल्यूशन नॉन है, दूसरा हमने फाइंड करना है। अगर एक नॉन है, दूसरा फाइंड करना है, तो उन दोनों फंक्शंस का जो कि अननोन है और नॉन है, उन दोनों को अगर आप एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में एक फंक्शन इसलिए मिलेगा क्योंकि अननोन जो सॉल्यूशन है वो भी एक फंक्शन होगा। अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना पता है कि वो एक फंक्शन होगा। तो अगर आप y1 और y2 को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आपको एक फंक्शन ही मिलेगा, और y2 उससे आप लिख सकते हैं uy1। यहाँ तक क्लियर है? सर यस सर। ओके जी। अब इस u को अगर हम फाइंड कर सके तो y1 के साथ जो ओरिजिनल y1 गिवन है, जो नॉन वैल्यू है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज y डबल डैश इज इक्वल टू 2 है, इसका एक सॉल्यूशन y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नॉन है। y2 क्या होगा? y2 होगा u मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, u मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, या u मल्टीप्लाइड बाई y1 स्क्वायर, y1। सो अगर u फाइंड हो जाए तो u एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके सेकंड सॉल्यूशन दे देगा। अब u कैसे फाइंड करें? अब हमारे पास और डेटा मौजूद हैं। डेटा क्वेश्चन में दो डेटा था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक सॉल्यूशन था, और उसके बेस पे तीसरा चीज फाइंड करना था y2। तो y1 तो हमने यूज किया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, तो अगर हम इस y2 को दो दफा डिफरेंशिएट करें, एक दफा डिफरेंशिएशन से ये क्या देगा? y2 डैश, दिस विल बी इक्वल टू u का पहले u को छोड़ दे, y1 डैश का करे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करे, फिर प्लस लेके u डैश लिख ले और y1 छोड़ दे। अब y डबल डैश लिख ले, y2 डबल डैश लिख ले। y2 डबल डैश कैसे करेंगे? इसको फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करे और इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करे, सो यू विल गेट y2 डबल डैश। और अब आप क्या करें, यहाँ पे देखें, ये है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इक्वेशन 3 में गिवन है, y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx इज इक्वल टू
क्यों एक्स वाई इज इक्वल टू 0, y1 उसका एक सॉल्यूशन है, y2 हमने फाइंड करना है विच इज uy1, y2 को उन्होंने y का नाम दिया है, सो uy1। अब इस y को एक दफा डिफरेंशिएट करें, यू विल गेट uy1 डैश प्लस y1 u1 डैश, इसको दूसरी दफा डिफरेंशिएट करें, यू विल गेट दिस वन। अब इस y2 की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें। सो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे प्लस क्यों ऑफ y डैश प्लस y is equal to q of x, so this is y, this is y। so इसमें वैल्यूज पुट करें, so if you put the values, so you will get q of x into y, this is q of x into y, q of x into y। so अगर आप वैल्यूज इसमें से पुट करें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला, जिसमें से कुछ टर्म से आप u कॉमन कर लेंगे, कुछ टर्म से u डैश कॉमन कर ले और कुछ टर्म से u डबल डैश कॉमन कर ले। समझ आ गया जी? यस सर। अब देखिए u के साथ जो कॉमन में जो टर्म्स हैं वो तो बिल्कुल इक्वेशन 3 की तरह लग रहे हैं, लेकिन y की जगह सिर्फ y1 नजर आ रहा है। देखिए वहां पे भी y डबल डैश है, यहाँ पे y1 डबल डैश है, वहां पे px y डैश है, यहाँ पे py1 डैश है, px एंड p इज सेम थिंग, यहाँ पे qy1 है, वहां पे qy है इक्वल टू 0। सो अगर y1 उसका सॉल्यूशन है तो अगर y की जगह हम y1 में प्लेस करें तो ये 0 नहीं देगा, देगा ना? यस सर, ये 0 देगा। हाँ, क्योंकि y1 उसका सॉल्यूशन है, तो अगर y की जगह y1 रिप्लेस करे तो ये 0 देगा। इट मींस u का कोएफिशिएंट 0 बन जाएगा। सर ये दोबारा जरा रिपीट कर लें। अच्छा, हमने y एक सॉल्यूशन नॉन है, दूसरे सॉल्यूशन को कहा कि वो uy1 होगा। यहां तक समझ आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, इस y को दो दफा डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल से और फिर इक्वेशन 3 में उसके वैल्यूज पुट करें, y डैश की भी, y डबल डैश की भी, y के भी। उनमें से कुछ टर्म्स कॉमन करें, मतलब कुछ टर्म्स में, 3 टर्म्स में u कॉमन होगा, 2 टर्म्स में u डैश कॉमन होगा और एक टर्म के साथ u डबल डैश होगा। तो u के साथ जो टर्म्स आ जाएंगे वो 0 इसलिए होंगे क्योंकि इक्वेशन 3 में अगर y1 आप रिप्लेस करें तो उन्होंने 0 देना है, तो इसलिए ये 0 बन जाएगा। ठीक है जी? यस सर। ओके यस सर। अब ये रह गया y1 u डबल डैश प्लस 2y1 डैश प्लस py1 u डैश इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रह गया। अब ये अगेन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर u डैश को हम w कंसीडर करें, अगर u डैश को w कंसीडर करें तो u डैश की जगह w आ जाएगा और u डबल डैश की जगह w डैश आ जाएगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, जब फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ तो इस फर्स्ट ऑर्डर को तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस सर। इस w डैश को dw by dx लिख ले, ठीक है? dx को उस साइड पे ले जाए, w को इस साइड पे ले आए। देखिए ये इस इक्वेशन में Yes, sir. नजर आ रहा है, यहां तक समझ आ रहे हैं? यस। थोड़ा सा अरेंज करना है, इक्वेशन 4 को थोड़ा सा अरेंज करना है। w डैश की जगह dw by dx लेके तो अरेंज हो जाएगा। यस सर। अच्छा जी, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? dw by w इज log w। बिल्कुल सर, log w आता है ln w। और यहाँ पे क्या होगा? y1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, y1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? 2 log ऑफ y1। यस सर। यस सर। और ये p अभी नॉन भी नहीं है,
तो p को अगर इंटीग्रेट करना है तो सिर्फ इंटीग्रल ऑफ p लिख ले। बिल्कुल सर। अच्छा जी, अब इन दोनों के साथ चूंकि log होगा तो उन दोनों log को कंबाइन करे और इस 2 को y1 के पावर में ले जाए तो एक log बन जाएगा। यहां तक समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, एंटी लॉग ले ले। एंटी लॉग लेने के बाद ये p जो है e पावर में चला जाएगा। यस सर। यस यस सर। सर सही। यस सर। अच्छा जी, अब इससे w की वैल्यू निकाले, ये y1 नीचे आ जाएगा, 1 ओवर y1 स्क्वायर बन जाएगा, 1 ओवर y1 स्क्वायर। w बन यस सर। जाएगा। यस सर। हाँ जी, अब w की जगह u डैश पुट करें, बिल्कुल सर। w की जगह u डैश पुट करें, सो उसको अगेन इंटीग्रेट करें, सो यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं एग्जांपल देने लगा हूं। अच्छा जी, एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो ये y1 इज इक्वल टू x, ये इसका एक सॉल्यूशन है। यस सर। अच्छा, अगर हम y2 हमें पता ना हो, अगर पता ना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं uy1 यस सर। यस सर। u किसके इक्वल है, u याद रखे, u के लिए हमने फार्मूला जो अभी डेवलप किया, ये 1 ओवर y1 स्क्वायर e पावर माइनस px इंटू डी ऑफ एक्स होगा। दिस इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग u, ये अभी हमने डेवलप किया। यस So, सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में px की वैल्यू क्या होगी? px हमेशा याद रखे, px कोएफिशिएंट होता है किस चीज का, y डैश का। जनरल इक्वेशन ऐसे होता है, देखे 0 जी, 1 y डबल डैश प्लस px y डैश। सो इस केस में अगर y डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा सो px 0 होगा। दिस इज प्लस qx एंड दिस इज जनरल इक्वेशन, this is general equation, so it means in this case px is 0। so अगर px 0 है तो आपका u किसके इक्वल होगा, हमने u फाइंड करना है, 1 ओवर y1 स्क्वायर, y1 is x, so this is x square, so e power minus p means 0 into d of x, so this is equal to what, e power 0 is 1 over x square का इंटीग्रल क्या होगा, minus 1 over x। now what is y2, y2 किसके इक्वल होगा, अगर u फाइंड हुआ, u is what, minus 1 over x, and what is y1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज, this is x, so ये दोनों कैंसिल करें, so आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, -1। तो -1 उसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। यस सर, y2 दूसरा सॉल्यूशन, y1 पहले सॉल्यूशन। जी यस सर। व्हाट जी, वन इज सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये मिल गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो तो दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करें। तो हमेशा याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब px आप कलेक्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से px तब कलेक्ट होता है जब आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट पे उसको डिवाइड करें। सपोज सर रिपीट करें। अच्छा जी, अच्छा।
ये है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, दिस इज माइनस 3x dy by dx, this is 3x, this is plus 4y, this is equal to 0, this is differential equation। उसका एक सॉल्यूशन नॉन है y1 is equal to x square, हमने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है तो y2 is equal to uy1 होगा। यस सर। u इसके इक्वल होगा, इसमें px किसके इक्वल होगा, px जब भी आप कलेक्ट करते हैं तो आप 3x के पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिवाइड करें तो px ये नहीं होगा। यस सर, ये होगा। देखिए जब आप जनरल इक्वेशन को देखें तो y डबल डैश के साथ 1 होता है, तो पहले आप x स्क्वायर पे डिवाइड करें फिर px कलेक्ट करें। So now this 0 is actually what? This is minus 3 by x. This is minus 3 by x now. This is सर ये x कहाँ से आ गया? ये माइनस 3 बाई x। ये x स्क्वायर पे जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x by x स्क्वायर विल गिव यू 3 by x। यस सर, ओके सर। अच्छा जी, अब देखिए e पावर 3 log of x बन जाएगा। e पावर 3 log of x किसके इक्वल है, log x क्यूब के। e और log कैंसिल हो जाएंगे तो x क्यूब आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 over x पावर 4, क्योंकि 1 over y1 स्क्वायर किसके इक्वल है, y1 is x स्क्वायर, so y1 स्क्वायर is x पावर 4 in this case। so ये बन जाएगा 1 over x क्यूब divided by x power 4। So this is what? This is 1 over x into d of x. So this is actually equal to log of x. Excuse me sir, please repeat this one. अच्छा, ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये बन जाएगा x स्क्वायर into log of x। दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। ये असल में आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है, मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये क्या होगा, ये e पावर यस सर। log of x नहीं होगा, ये e log of x क्यूब नहीं होगा। यस सर, होगा। e log एक दूसरे को जब कैंसिल करेगा तो x क्यूब आएगा। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली x क्यूब लिखा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, सो दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो जनरल सॉल्यूशन लिखे। जनरल सॉल्यूशन तो तब हम लिख सकेंगे जब हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल जाए। जब सेकंड सॉल्यूशन मिला तो हम c1 c2 मल्टीप्लाई करके जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा इस बोर्ड पे लिखना मुश्किल होता है। पहले 2 क्लासों में मैं जिस तरह तकता था, अब एक क्लास में इतनी थकावट होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अल्लाह खैर करे ताकि चीज़ें ख़त्म हो जाए, हम वापस अपने रूटीन पे आ जाए। अब देखें, आपके पास मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है, अब हम दोनों सॉल्यूशंस ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नॉन है तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है और उसके कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट हैं
तो उसके दोनों सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और कोएफिशिएंट वेरिएबल है तो फिर दोनों कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का एंड ये है कि अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके कोएफिशिएंट अगर ए बी सी कांस्टेंट हैं तो उसके दोनों सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, दोनों, एक नहीं दोनों। सो अब एक बात नोट करें, अगर आपको याद हो तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला था y डैश इज इक्वल टू के वाई का। इसका सॉल्यूशन क्या आया था, याद है आपको? C1 e पावर ky है, C1 e पावर के टी था, ठीक है जी, बिकॉज वाई डिपेंड। अच्छा जी, अब इसको मैंने आपसे कहा भी था, जब भी आप कोई नया चीज डेवलप करने जा रहे हैं, आपने प्रीवियस चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उसी से नकल करके आपने उन चीजों को अपडेट करना है आगे के लिए। तो मैं इसी से नकल ले रहा हूं। नकल इसमें ये है कि आप देखें, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नजर आ रहे हैं, होमोजीनियस है। यस सर। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो कॉमन है, वो जो मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि इसके कोएफिशिएंट जो है दोनों के सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक में कोएफिशिएंट k है, एक का 1 है, तो इट मींस दोनों कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी हैं। यस सर। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी हो और उसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी हो तो एक्चुअली उसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। यस सर। यस सर। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, ये होमोजीनियस भी है बिल्कुल उस तरह, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर है। ये इसके कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट हैं, उसके भी कांस्टेंट थे, तो दोनों चीजें दोनों में कॉमन है। यस सर, इसका सॉल्यूशन भी एक्सपोनेंशियल में आएगा। नहीं, लेट करते हैं कि हो सकता है कि उसी तरह इसका भी सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। सो हम कहते हैं लेट द सॉल्यूशन एज e पावर mx। सो अगर y e पावर mx है तो y डैश क्या होगा, y डैश आपका m e पावर mx होगा। और y डबल डैश क्या होगा, y डबल डैश होगा आपका m स्क्वायर, यस, e पावर mx। जी, अब अगर इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूं, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको इसमें पुट करूं और साथ साथ मैं e पावर mx को कॉमन भी कर लूं, क्योंकि e पावर mx y में भी है, y डैश में भी है, y डबल डैश में भी है। सो दिस इज am स्क्वायर प्लस bm प्लस c एंड e पावर mx को अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब दो चीजों का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर 0 है तो इन दोनों में एक 0 होगा, तो मैं कहता हूं कि am स्क्वायर प्लस bm प्लस c 0 होगा, क्योंकि e पावर mx जो है उसको हमने सॉल्यूशन माना है और सॉल्यूशन 0 नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि e पावर mx 0 नहीं होगा, तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c 0 होगा। यहां तक समझ आ रहे हैं सर? यस सर, आइदर और। जी, अगर e पावर सर ये c के साथ e पावर mx का, जी, e पावर mx इसलिए 0 नहीं है क्योंकि इसको हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया है, सॉल्यूशन 0 नहीं होता, इसलिए दूसरा 0 होगा। सर ये c, जी सर ये c सर के इस साथ चीज e से आपसे पावर कॉमन mx कहाँ से आ गए? c के साथ, अच्छा c के साथ y है, यस, ठीक है जी, c के साथ, अच्छा यस जी। सर, ओके। अब देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को हम एक नाम देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम
कैरेक्टरिस्टिक चले आप फिर कंप्लीट करें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके तो आप लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज y डबल डैश जहां पे हो तो m स्क्वायर लिख ले, जहां पे y डैश हो तो उसकी जगह m लिख ले और कोएफिशिएंट साथ में लिख ले। ये 2m लिख ले, और जहां पे y हो वहां पे ओनली कोएफिशिएंट लिख ले। ये 3 नहीं है सर, 3m आएगा। दिस इज 3s सर m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। यस, क्योंकि y की जगह अगर हम e पावर mx कंसिडर करें तो ये y कॉमन हो जाता है और y डैश के साथ भी वही होता है और y डबल डैश के साथ भी वही होता है। सो y डबल डैश की जगह ओनली m स्क्वायर, अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है तो वो भी लिख ले। y डैश की जगह ओनली m और y की जगह आप 1 लिख ले, ओनली कोएफिशिएंट लिख ले 2। क्लियर हुआ जी? यस सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इस इक्वेशन 2 के या इसको अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इसके 2 रूट्स होंगे, m के 2 रूट्स होंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि m के 2 रूट्स होंगे। ये देखें, ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई ई पावर एम एक्स उन्होंने पुट किया, फिर कॉमन किया, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी आया, जिसको एक्सिलरी इक्वेशन का नाम दिया। अब इसके 2 रूट्स होंगे m1 और m2, या तो वो दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या तो वो रियल एंड सेम होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, यस सर। इस इक्वेशन 2 के 2 रूट्स होंगे, या तो वो दोनों सेम होंगे, मतलब सपोज हो सकते हैं 2 and 2 आ जाए, 3 and 3 आ जाए, 4 and 4 आ जाए, 2 and 3 आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, 4 and 5 आ जाए, या हो सकते हैं 2 प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाए, 2 प्लस 3 आयोटा एंड दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा आ जाए। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो क्या होगा। तो हम इस पे आगे बात करते हैं। जी, अगर इस a की जगह, इस b की जगह और इस c की जगह हम वैल्यूज रिप्लेस करें, इट इज 6y, दिस इज 5y, इसको सॉल्व करना हुआ तो हम लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 yes equal to 0. So this have 2 roots, that is in this case the roots are m is equal to -2 and -3. तो याद है आपका सॉल्यूशन क्या था, e पावर mx means mx means -2x। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, y2 e पावर -3x। यस, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e पावर -2x प्लस c2 e पावर -3x। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। यहां तक समझ आ रहे हैं? यस सर। अच्छा जी, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं,
अगर अगर मैं रिपीटेड रूट्स की तरफ चला जाऊं, मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल करने हैं, बाकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह भी मिल जाए, मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए मसला नहीं है। सो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर y डबल डैश हो प्लस 4y हो डैश एंड प्लस 4y हो इक्वल टू 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ये होगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे -2 एंड -2। यस, तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिला एक्चुअली। दोनों रूट से तो दो सॉल्यूशन नहीं मिलते अगर दोनों सेम हो, मुझे एक ही सॉल्यूशन मिला। यहां समझ आ रहे हैं? यस सर। अच्छा जी। Yes, sir. अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो आप लिखेंगे u(y1), लेकिन u को जब आप फाइंड करेंगे इस फार्मूले से जो हमने पहले पढ़ा है 1/y1 स्क्वायर e पावर माइनस p into dx, जब इस फार्मूले से u फाइंड करेंगे तो आपका ux आ जाएगा। नोट करें इस पॉइंट को। u कैसे x आएगा, इसमें आपका y1 क्या है, e पावर माइनस 2x, y1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, e पावर माइनस 4x, और आपका p क्या है, p is 4 in this case, so p की करें, कैलकुलेट करें, you will get x। so आपका y2 क्या बना, y2 आपका बिल्कुल सर x आता है x e पावर माइनस 2x। अगर आप कंबाइनली इसको लिखते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन लिख रहा हूं, c1 प्लस c2 x e पावर माइनस 2x। लेकिन एक बात नोट करें, ये रूट्स अगर -2 की जगह -4 भी आ जाए तो आपका u जो है वो x ही रहेगा। अगर ये 6 आ जाए फिर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ux आएगा। इट मींस रिपीटेड रूट्स के लिए हमेशा आप सॉल्यूशन ये लिखेंगे c1 प्लस c2x e पावर mx, m जो भी हुआ। यस सर। अच्छा जी, ये सेकंड स्टेप हुआ। अब मैं थर्ड स्टेप करता हूं कॉम्प्लेक्स के लिए। अच्छा जी, अगर ये +2 बन जाए और ये +2 बन जाए, अगर ये 2y डैश बन जाए और ये +2y बन जाए इक्वल टू 0, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रूट्स क्या होंगे, मुझे नहीं पता रूट्स क्या होंगे, लेकिन मैं रफली लिख रहा हूं इसको, -2 प्लस माइनस 3 आयोटा, सपोज ये रफ में लिख रहा हूं, ठीक है जी। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ये नोट करें, e पावर रियल पार्ट into x c1 cos of imaginary part into x plus c2 sin of imaginary part
इंटू एक्स। तो मेरे ख्याल में ये सिंपल हैं। तो ये कैसे डिराइव्ड होता है? ये वैसे ही डिराइव्ड होता है, देखिए एक एक बन जाएगा y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, e पावर c1 e पावर m1x प्लस c2, जनरल सॉल्यूशन हमेशा ऐसे होता है c2 एंड e पावर m2x। लेकिन m1 और m2 की वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अगर दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x होगा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हुए, सपोज m1 इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m2 इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो जनरल सॉल्यूशन तो फिर भी वही होगा c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। लेकिन e पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x को थोड़ा सा ओपन करे, e पावर आयोटा थीटा हमेशा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के। तो इसको अगर थोड़ा सा आप ओपन करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू e पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। सो अगर मैं अब दोबारा इसको लिख रहा हूं कि अगर आपके पास ये देखें, सर यहाँ पर आपको पता चले सर कि इसका कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा, इस वजह से लिट किए सर या सपोज किए सर? नहीं, ये मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कुछ और होगा सर। लेकिन कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा सर? मुझे पता है कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा ना सर। -1 प्लस माइनस आयोटा आता है, -1 प्लस माइनस आयोटा आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप -1 यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे आयोटा 1 लिख ले, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 1 होगा। 1 1 के लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये होगा। अच्छा जी, ये नोट करें, अगर रूट्स 1 2 एंड 3 आ जाए, अगर वो थर्ड ऑर्डर हुआ तो फिर ये 3 रूट्स आएंगे ना। यस सर। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, c1 e पावर 1x प्लस c2 e पावर 2x प्लस c3 e पावर 3x, ये सॉल्यूशन होगा। अगर m के वैल्यूज ये आ गए, अगर ट्रिपल डैश का है तो फिर 3 रूट्स आएंगे। अगर एक रूट 1 आया, 2 रूट्स रिपीटेड आ गए, फिर क्या करेंगे, एक के लिए लिख लेंगे c1 e पावर x, इन दोनों के लिए अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे e पावर 2x और बीच में से लिख लेंगे c2 प्लस c3x। समझ आ गया जी? यस सर। अच्छा जी, अगर 3 रूट्स रिपीटेड आ जाए 2 2 एंड 2, फिर लिखेंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e पावर 2x। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, अगर एक रूट रियल आ जाए और 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, तो आपने लिखना है, इसके लिए अपना लिख ले, और c1 e पावर 1x एंड इसके लिए प्लस e पावर रियल पार्ट इंटू x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, cos 3x and plus c2 sin 3x sin 3x। क्लियर हुआ जी? यस सर। अच्छा जी, अब देखिए एग्जांपल 1 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं,
2y डबल डैश माइनस 5y डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट m1 इज इक्वल टू -1/2 और m2 इज इक्वल टू 3। सो सॉल्यूशन बन जाएगा e पावर दिस इज -x/2 प्लस c2 e पावर x/3। समझ आई है ना? यस सर। अब अगर ये डबल रूट्स आ गए m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 5, तो आप लिख लेंगे c1 प्लस c2x e पावर 5x कॉमन करें तो आ जाएगा। यस सर, ब्रैकेट में c1 और c2। m स्क्वायर y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 7y इक्वल टू 0। The characteristic equation is m square plus 4m plus 7 equal to 0. So one root is -2 plus square root 3 iota, and second root is m1 -2 minus square root 3 iota. So solution is y is equal to e power alpha. Alpha is -2, and beta is always positive. Beta को positive लेंगे, so this will become square root 3x. This is again another differential equation. The root says m1 -1/2 plus -2 iota. So this will become e power -x/2 c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Initial condition given है वो आप आराम से कर लेंगे c1 c2 फाइंड करने के लिए। So ये थर्ड ऑर्डर के लिए है और ये फोर्थ ऑर्डर के लिए है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये लास्ट में आपको रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट्स भी दिए हैं, प्रोसीजर की कैसे करेंगे। तो ये आप लोगों का जो था आज का। सर ये लेक्चर आप हमें शेयर करेंगे, जो स्लाइड्स आप पढ़ा रहे हैं ना? ये जो स्लाइड मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं शेयर करूंगा, यस वीडियो भी शेयर करूंगा। स्लाइड तो मैंने स्लाइड्स हैं वीडियो के बारे में शेयर कर चुका हूँ। जी सर, स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। हाँ स्लाइड पड़ी हुई है, एक असाइनमेंट भी मैंने दिया है और मैं वीडियो जो है क्लास के बाद वीडियो शेयर कर लूँगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। चाहे एक्सपीरियंस आपका इसके रिलेटेड कैसा था, कोई प्रॉब्लम वगैरह? सर जी आपने जितना आज पढ़ाया है, मतलब ऑनलाइन क्लास में आपने जितना आज पढ़ाया है वो आप वैसे फेस टू फेस पढ़ा रहे थे आज जितना क्लास में? यस सर, जो आप जितना लेक्चर आपने आज पढ़ाया है वो क्लास में पढ़ा रहे थे कि नहीं? मेरा टारगेट तो यही था। तो वो तो आपने सर पूरा कर लिया। रीजन ये है कि मैं उस तरह नहीं पढ़ा रहा जिस तरह आप मतलब मैं सिर्फ स्लाइड नहीं पढ़ रहा, मैं साथ साथ बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ स्लाइड पढ़ा रहा होता तो इससे जी जी सर ज्यादा टाइम वो बोर्ड पे वेस्ट होता है। हाँ ज्यादा टाइम तो मेरे बोर्ड पे लगता है। अगर मैं स्लाइड यूज करता, सिर्फ स्लाइड यूज करता तो मैं इससे 3 गुना ज्यादा पढ़ा सकता था। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझ ले। तो हमने आज क्या पढ़ा, दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने ये पढ़ा कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं तो उससे जनरल सॉल्यूशन कैसे बनता है। पहले चेक करना है कि वो दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। एक हमने मेन चीज जो पढ़ी हुई ये पढ़ी। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। वो उसके लिए हमने 2 तरीके पढ़े। एक आपका रॉन्स्कियन मेथड हमने पढ़ा और एक आप लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले ले। अगर सारे स्केलर 0 आ गए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एटलीस्ट एक भी स्केलर नॉन 0 आया तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ा, लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ा, फिर हमने दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके जनरल सॉल्यूशन निकाला। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नॉन है तो उसका दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि अगर एक भी सॉल्यूशन नॉन नहीं है
तो दोनों सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन दोनों सॉल्यूशन हमने फिलहाल होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए निकाले हैं, आगे हम वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए भी निकालेंगे। सो आप जो है इसको नोट करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो में शेयर करूंगा, वीडियो से देख ले। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट हम दे देंगे और फिर इसको जिस पॉइंट पे आप क्लियर नहीं है फिर हम रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो वीक पॉइंट्स आपके मुझे नज़र आते हैं उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूं, और मुझसे जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं तो वो एक्सप्लेनेशन आपको क्लास के दौरान दे देता हूं। और जहां पे मुझे आपको फील हो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताया करें, उस टाइम पे मैं और दोबारा रिपीट करता जाऊंगा। तो वहां तक हमने इसको नहीं छोड़ना जहां तक आपको क्लियर ना हो। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये होमोजेनियस इक्वेशन के रूट्स अगर सॉल्यूशन अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो तब हम उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। हाँ, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो फिर नहीं लिख सकते। सर बुक में इससे रिलेटेड कौन से एक्सरसाइज देखी? अच्छा, वो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको मैसेज कर लूंगा कि ये एक्सरसाइज और इसमें ये क्वेश्चन आप देख लें इसके रिलेटेड। मैं स्ट्रीम पे आपको बता दूंगा, ठीक है।